ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام ٹونی چڑیا تھا۔ ٹونی چڑیا بہت اچھی اور نیک دل چڑیا تھی جو اپنے جنگل کے باقی سبھی پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اور ہاں، ٹونی چڑیا بہت مشہور چڑیا تھی کیونکہ ٹونی چڑیا کھیتی کرتی تھی اور اس کھیتی سے ٹونی چڑیا بہت سارے پیسے کماتی تھی اور وہ پیسے ٹونی چڑیا غریبوں میں بھی بانٹتی تھی۔ سبھی لوگ ٹونی چڑیا کے اچھے کردار سے واقف تھے اور ٹونی چڑیا کو اس جنگل میں پسند کرتے تھے۔ ارے واہ، اس دفعہ کتنے اچھے کیلے اگے ہیں۔ میں تو ایوی پریشان ہو رہی تھی کہ میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ اس دفعہ بہت اچھے کیلے اگے ہیں، ان کو میں جب شہر میں جا کر اچھے داموں پر بیچوں گی، لگتا ہے ان کیلوں سے مجھے اچھا خاصا منافع ہوگا۔ اور ہاں، میں نے اپنی دوست کی بھی تو مدد کرنی تھی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے۔ چلو اچھی بات ہے، اب اس کو پیسے بھی دے دوں گی اور پھر بھی میرے پاس کافی رقم بچ جائے گی۔ اوپر والے کا شکر ہے۔ دوسری طرف اس جنگل میں ایک کوا رہنے آیا تھا جس کا نام کالو کوا تھا۔ یہ کالو کوا پہاڑوں میں سے آیا تھا اور اب اس جنگل میں رہنے لگ گیا تھا۔ تبھی وہ کالو کوا گھر سے باہر نکلتا ہے اور جنگل کی معلومات لینے کے لیے جنگل کے پرندوں کے پاس جاتا ہے اور وہ آ کر وہاں چیل سے مل لیتا ہے۔ ارے دیکھو کالو کوے، مجھے جو اس جنگل کے بارے میں پتا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے، لیکن ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اتنی معلومات لے کے آخر کرنا کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں، میں نے بھلا کیا کرنا، وہ تو میں اس جنگل میں نیا آیا تھا اور مجھے تم مل کے سوچا تم سے اس جنگل کے بارے میں پوچھ لوں، تو میں سمجھ گیا ہوں اس جنگل میں سب سے زیادہ مشہور ٹونی چڑیا ہے جو کہ ایک امیر چڑیا ہے۔ شکریہ میرے دوست، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور سناؤ کیا حال چال ہے، تم کہاں پر رہتے ہو اس جنگل میں؟ وہاں دوسری طرف دن رات محنت کر کر کے ٹونی چڑیا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا سخت بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری طبیعت تو بہت خراب ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سب میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی اس دفعہ کام میں بہت دھیان دیا اور اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ اب بھلا کیا کروں میں؟ مجھے تو جا کر کیلوں کو شہر میں بیچنا تھا اور اپنے دوست کو ادھار پیسے دینے تھے۔ وہاں دوسری طرف کالو کوا آتے ہی ٹونی چڑیا کے خلاف سازش کرنے کی سوچنے لگتا ہے کہ کیسے وہ ٹونی چڑیا کی دولت کو اس سے چھین سکتا ہے۔ کالو کوا فوراً سے ٹونی چڑیا کے فارم پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں پر کوئی نہیں۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا، اتنی امیر چڑیا اور اپنے فارم پر کوئی بھی گارڈ نہیں رکھا، پھر فارم کی رکھوالی کرے۔ ابھی ایسے کرتا ہوں، اس کے سارے کیلے اٹھا لیتا ہوں اور جا کر سستے دام میں بیچ دیتا ہوں۔ کالو کوا وہاں سے سارے کیلے لے جاتا ہے۔ کیلے لے لو، کیلے سستے دام میں کیلے لے لو، آج تک تم لوگوں نے اتنے سستے کیلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ چونکہ کالو کوا سستے کیلے بیچ رہا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے کالو کوے کی دکان پہ رش لگنے لگتا ہے اور کالو کوے سے لوگ سارے ہی کیلے خرید لیتے ہیں اور کالو کوے کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر کالو کوا بہت خوش اور حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی اتنی کمائی کر لی۔ آخر کار ٹونی چڑیا کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے فارم پر آ کر دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، میرے سارے کیلوں کے درخت کہاں گئے جن کی میں نے کھیتی کی تھی اور جن کو میں نے بیچنا تھا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اوپر والے؟ اب میں کیا کروں گی؟ اپنے دوست کو ادھار پیسے کیسے دوں گی اور باقی غریبوں کی مدد کیسے کروں گی؟ ٹونی چڑیا اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور رستے میں دیکھتی ہے کہ ایک کوا بہت سارے کیلوں کی ٹوکریاں رکھ کر بیچ رہا ہے اور ٹونی چڑیا اپنے کیلوں کو پہچان لیتی ہے کہ یہ اسی کے کیلے تھے۔ کالو کوے نے تو خوب کمائی کر لی تھی اور اب کالو کوا نئی اسکیم سوچ رہا تھا، تبھی اسے خیال آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس جنگل میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو میں پکڑا جاؤں اور میرے سے سارے پیسے لے لیے جائیں، اسی لیے ایسا کرتا ہوں، میں سارے پیسے لے کر آج ہی بھاگ جاتا ہوں۔ کالو کوا سارے پیسے لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی رستے میں کالو کوے کو دو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور کالو کوے کا سارا پیسہ لے لیتے ہیں، کیونکہ آخر کار یہ پیسہ کون سا حلال کا تھا، کالو کوے نے یہ پیسہ چوری کر کے ہی کمایا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور وہاں دوسری طرف بیچاری ٹونی چڑیا محنت کر کے اب جامن کی کھیتی کرتی ہے اور پھر جامن بیچنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ پھر سے غریبوں کی مدد کر سکے اور اپنی دوست کو بھی ادھار دے سکے۔ اور ایسے ہی ٹونی چڑیا بہت سارے پیسے کما لیتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹونی چڑیا تھی تو آخر نیک دل ہی۔ اور پھر ٹونی چڑیا اپنی دوست کو ادھار پیسے دیتی ہے اور سب غریبوں کی مدد کرتی ہے۔
वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा नए जंगल में चला जाता है। ना उसके पास रहने को घर होता है और ना ही कोई पैसा। सही कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। एक जंगल की बात है जिसका नाम टूनपुर था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी और टूनी चिड़िया का शौहर भी मर चुका था और ना ही उसकी कोई बेटी या बेटा था। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती करके अपना घर चलाती थी और अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। वो गन्ने को मिल में बेचती थी और मिल के मालिक से कुछ पैसे ले लेती थी और मिल का मालिक उस गन्ने की चीनी बना देता था। टूनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती थी और कमाती थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं, पहले भी तो इतना ही काम करती हूँ। आज मैं पता नहीं क्यों थक गई हूँ, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अगर मैंने आज गन्ने ना बेचे तो मैं अपना रात का खाना कहाँ से लाऊंगी? इसीलिए मुझे मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ से कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो मेरी दोस्त टूनी चिड़िया? अच्छा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी टूनी चिड़िया। हाँ बोलो कालू कौवे, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए है? और इतने दिनों बाद आज कहाँ से आ गए तुम अचानक से? मैं तो काम कर रही थी बैठी। अरे टूनी चिड़िया, मुझे तुम कुछ गन्ने उधार दे दो प्लीज। मुझे बहुत भूख भी लगी है और मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें हरगिज़ गन्ने नहीं दूंगी। तुमने तो मेरा पुराना उधार भी वापस नहीं किया है। पहले वो उधार वापस करो और फिर आना मेरे पास। तुम्हें कोई गन्ना नहीं मिलेगा। चलो भागो यहाँ से। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से घर आ जाती है और कालू कौवे को भगा देती है। मगर कालू कौवे ने टूनी चिड़िया की इस बात को अपने दिल में रख लिया। हाँ, बढ़िया ही टूनी चिड़िया, देख लूंगा मैं इसे भी। देखना अभी मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मुझे गन्ने नहीं दे रही ना, तो ये किसी को भी गन्ना नहीं दे पाएगी टूनी चिड़िया। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के गन्नों पे आकर एक स्प्रे कर देता है, जिससे टूनी चिड़िया के गन्नों से बहुत सी अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे उनको फंगस लग गई हो। हाँ, अब ये गन्ने वो भी बदबू वाले कौन खरीदेगा या कौन खाएगा टूनी चिड़िया? बेचारी टूनी चिड़िया, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने खेतों में आती है तो देखती है वहाँ से बहुत बदबू आ रही है, जैसे सारे गन्नों को फंगस लग गई हो। टूनी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और परेशान होकर रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया है मेरे साथ? ये मेरी खेती को क्या हो गया है? इस सब को तो ऐसे जैसे फंगस लग गई हो और इतनी बुरी बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी? आज की रोटी कहाँ से लाऊंगी अपने लिए? एक चाल चलने के बाद कालू कौवा दूसरी चाल चलता है और जाकर मिल के मालिक को सब कुछ सच सच बता देता है और टूनी चिड़िया के खिलाफ कर देता है। अरे सेठ जी, मैं ये कहने आया था कि टूनी चिड़िया के गन्ने हरगिज मत खरीदे। मैं कल ही टूनी चिड़िया के गन्ने लेकर गया और जब मैंने घर जाकर खाए तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे तो लगता है टूनी चिड़िया अपनी खेती में कोई केमिकल इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके गन्नों से बहुत बुरी बदबू भी आ रही है, इसीलिए अब आप मेरे से गन्ने लेना। मैं भी खेती लगा रहा हूँ, कुछ देर में मेरी खेती उग जाएगी तो मैं आपको अच्छे और बिल्कुल बिल्कुल केमिकल से साफ गन्ने दिया करूँगा। फिर कालू कौवा भी गन्ने बो देता है ताकि कालू कौवे के पास भी गन्ने का खेत आ जाए और वो सेठ को बेचकर पैसे कमा सके। मगर टूनी चिड़िया को जब ये बात पता लगती है कि कालू कौवे ने भी गन्ने का खेत बोया है, टूनी चिड़िया फौरन से कालू कौवे के खेत पर जाती है और वहाँ जाकर केमिकल डाल देती है। वो केमिकल इस चीज का था कि कालू कौवे के गन्ने उग ही ना पाएं, बल्कि उतने के उतने ही रह जाएं। कालू कौवे को कानो कान खबर भी न थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। बेचारा कालू कौवे ने 1 महीना इंतजार किया कि उसकी खेती उगे और 1 महीने बाद जब वो आया तो वहाँ कुछ भी न था। अरे ये क्या, मेरे तो गन्ने उगे ही नहीं। 1 महीना इंतजार किया, 1 महीने में तो इतनी बड़ी खेती उग जाती है और मेरे गन्ने जरा से भी नहीं उगे। ये तो वैसे के वैसे ही हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा है मैंने टूनी चिड़िया के साथ बुरा किया, ये मेरे साथ उसी का बदला हो रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया 1 महीने में नई खेती उगा लेती है और फिर से सेठ को बेचना शुरू कर देती है। इस दफा सेठ खेती खुद देखने आया था और टूनी चिड़िया उसको यकीन दिलाती है कि वो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करती है
और ऐसे ही टूनी चिड़िया फिर से सेठ को माल बेचती है और ढेर सारी रकम कमाकर अमीर हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने लिए नया घर भी बना लेती है। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब तो बहुत सारे मजे मजे के फल आएंगे। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है आम खाने का और तरबूज खाने का। न जाने ये फल अब मार्केट में किस दिन आएंगे। मैं तो फौरन जाके बाजार से खरीद लाऊंगी और पेट भर के खाऊंगी ये सारा कुछ। अरे और सुनाओ कालू कौवे, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में? मैं तो बिल्कुल ठीक, बस चलना क्या है, गर्मियों का मौसम आ चुका है। हाँ ये बात तो है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। देखते हैं इस साल कितनी गर्मी बढ़ती है। मुझे तो गर्मियाँ बहुत पसंद हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है गर्मियों के बारे में? सभी लोग जंगल में अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। तभी जंगल में बादशाह का वजीर हर तरफ ऐलान करता, शोर मचाता फिर रहा होता है कि बादशाह ने जंगल में तरबूज उगाने का मुकाबला शुरू किया है। ये मुकाबला तो मैं ही जीत कर रहूंगी। देखते हैं कौन जीतता है ये मुकाबला। मैं तो अपनी पूरी तैयारी करूंगा, मुझे कोई हराने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपनी अपनी मेहनत में लग जाते हैं। दोनों डेली बाल्टी की पानी नदी से भर कर लाते हैं और लाकर अपने तरबूज को देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोनों का तरबूज उगने लगता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा तरबूज कैसा जा रहा है? मुझे तो लगता है ये मुकाबला तुम ही जीतोगी। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और देखना ये मुकाबला मैं जीतूंगी। बस एक बात याद रखना, तुम कोई तरबूज में केमिकल या इस तरह की आर्टिफिशियल चीज इस्तेमाल ना करना। अपने तरबूज को कुदरती तौर पर बड़ा होने देना। टूनी चिड़िया का तरबूज बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा पा रहा होता है, मगर कालू कौवे ने अपने तरबूज के साथ न जाने क्या किया है। पता नहीं मेरे तरबूज को क्या हो गया है, ये मनहूस मारा बड़ा ही नहीं हो रहा है। टूनी चिड़िया अपना तरबूज बहुत मेहनत से उगा रही होती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया का तरबूज बहुत बड़ा हो जाता है। मगर वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवे का तरबूज एक आम तरबूज ही होता है। कालू कौवा छुपके से टूनी चिड़िया का तरबूज देखने आता है और एक नई स्कीम बनाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मुकाबला हार जाऊंगा। मुझे अपना मुकाबला जीतने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। कालू कौवा अपने तरबूज के ऊपर आर्टिफिशियल दवाइयाँ लगाने लग जाता है। अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं मुकाबले में, मैं जाकर अपना तरबूज दिखाती हूँ। टूनी चिड़िया जैसे ही अपना तरबूज देखने आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके तरबूज के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। मैं भी देखता हूँ अब टूनी चिड़िया कैसे जीतती है। ओह टूनी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, वो तो तरबूज के ऊपर ही थे, कौन सा अभी अंदर चले गए थे। इस वजह से तुम्हारा तरबूज अंदर से बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। छोड़ो तुम इस बात को टूनी चिड़िया, बस एक ही दिन बचा है अब मुकाबले में। आखिरकार मुकाबले का दिन आ ही गया। टूनी चिड़िया अपना तरबूज लेके बादशाह के सामने पहुंचती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, इस दफा तो मुकाबला तुम ही जीतोगी। तभी वहाँ सबके मुंह बंद करने कालू कौवा अपना तरबूज लेके पहुंच जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं, यहाँ तक के बादशाह भी। अरे वाह कालू कौवे, तुमने तो बहुत मेहनत की है, तुम्हारा तरबूज तो बहुत बड़ा है। लगता है ये मुकाबले का विजेता अब तुम ही हो। बादशाह कालू कौवे और टूनी चिड़िया को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता है, मगर तभी अचानक से कालू कौवे का तरबूज छोटा होने लग जाता है। सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं और कालू कौवे के तरबूज से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और उसका तरबूज खराब हो जाता है। ओहो, अच्छा तो कालू कौवे ये बात है, तुमने अपने तरबूज में आर्टिफिशियल चीजें इस्तेमाल की, जिनसे तुम्हारा तरबूज मोटा तो हो गया मगर उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए और अब वो तुम्हारे ही तरबूज को खाकर बाहर निकल आए हैं। तुम इस मुकाबले के विजेता कभी नहीं हो सकते हो। कालू कौवा मुंह लटका के वापस आ जाता है और अपने तरबूज को देखकर अपने ऊपर गुस्सा करने लगता है। टूनी चिड़िया, इस मुकाबले की विजेता तुम ही हो। तुमने आखिरकार मेहनत से अपने तरबूज को उगाया है, तो भला मैं तुमसे तुम्हारा इनाम कैसे छीन सकता हूँ। तो देखा आप लोगों ने, हमें वही मिलता है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। कालू कौवे ने चीटिंग करके अपने तरबूज को बड़ा तो कर लिया, मगर उसने कोई मेहनत नहीं की थी, इसीलिए वो ये मुकाबला नहीं जीत सका और मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया।
टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के शोहर का इंतकाल हो चुका था और टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, मगर टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। वो दिन को काम पर जाती और फिर जैसी भी रूखी सूखी ही सही मगर अपनी बेटियों को रोटी देकर उनका पेट पालती थी। ऐसे ही एक रोज टूनी चिड़िया अपने घर में थी, तभी टूनी चिड़िया की बेटी उससे कहने लगती है कि माँ, आज तो कितनी ठंड है, भला इतनी सर्दी में आप बाहर क्यों जा रही हैं? आप थोड़ी देर बाहर चल जाना, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। माँ, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। अरे बेटा, सुबह जल्दी काम पर जाऊंगी तो शाम को जल्दी वापस आ सकूंगी और आकर फिर तुम लोगों को खाना बना कर दूंगी, इसीलिए सुबह जल्दी जाना जरूरी है काम पर। टूनी चिड़िया ये कहकर अपने घर से काम की तलाश में निकल जाती है, मगर सच तो ये है कि टूनी चिड़िया को कोई भी काम नहीं मिलता है और वो आज भी खाली पेट घर से निकली थी। टूनी चिड़िया ये बात जानती थी कि उसके घर में सिर्फ आज का ही राशन है, इसी वजह से अपनी बच्चियों को भी वो खाने को कम देकर आई है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और शदीद ठंड थी। इस ठंड में टूनी चिड़िया एक दरख्त की शाख पर बैठी इंतजार कर रही होती है कि कब उसे कोई काम मिले। टूनी चिड़िया बहुत परेशान होती है क्योंकि उसको कोई काम नहीं मिल रहा था और उसके घर का राशन भी खत्म हो चुका था। टूनी चिड़िया शदीद धुंध में बाहर शाख पर बैठी रहती है और टूनी चिड़िया के बैठे बैठे ही अचानक से कालू कौवा वहां पर आ जाता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को देखकर हैरान होती है और कालू कौवा कहता है, अरे टूनी चिड़िया, इतनी सर्दी में यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है जैसे तुम काफी परेशान हो। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है और घर में राशन भी खत्म हो चुका है। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि अपनी बेटियों का पेट कैसे पालूंगी। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? हाँ, वैसे एक काम तो है मेरे पास, मगर वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है तुम कर लोगी और अगर तुमने वो काम कर लिया तो मैं तुम्हें उसके पूरे 300 रुपए दूंगा। मुझे मंजूर है, जो भी काम है मुझे बताओ, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें किसी काम से मना नहीं करूंगी, बस तुम मुझे उसके पैसे दे देना। तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे घर के कमरों को सेट करना है और उनका सामान जो बिखरा हुआ है उनको ठीक करना है और बिल्कुल घर एकदम नए जैसा कर देना है, बस। टूनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे घर का काम करना शुरू हो जाती है और सामान यहाँ वहाँ ठीक करने लग जाती है और टूनी चिड़िया ने कुछ भी खाया नहीं होता है। वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा घर के बाहर आराम से बैठा धूप सेक रहा होता है। कालू कौवे को अब कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि वो तो 300 रुपए में टूनी चिड़िया से बहुत सारा काम करवाने लगा था और वो इस बात से बहुत खुश था। वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का प्यास से गला सूखता है तो वो कालू कौवे को आवाज देकर पानी मांगती है, मगर कालू कौवा उसकी आवाज तक नहीं सुनता और बाहर मस्त धूप में बैठा रहता है। फिर टूनी चिड़िया वापस काम पर लग जाती है। भूख से टूनी चिड़िया का बुरा हाल हो रहा होता है, मगर टूनी चिड़िया काम करती है। फिर शाम के 5 बज जाते हैं। मैंने बहुत सारा काम कर दिया है और अब शाम हो गई है, अब मुझे घर जाना है। तो ऐसा करो, मुझे मेरी दिहाड़ी दे दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। अभी कहाँ तुम्हारा काम खत्म हुआ है? अभी तो तुमने ये सोफा और इसके बाद एक टेबल, उसको भी तो घर में सेट करना है। पूरा काम किया नहीं और पैसे देख लो मांगने लग गई है। अरे यार, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? शाम हो गई है और सर्दी भी बहुत है, मुझे अपने घर जाना है। आपने मेरे से 300 में बात की थी, आप ऐसा करें मुझे 500 दे दे और मैं ये काम भी कर देती हूँ। लो, काम पूरा किया नहीं और पैसे मांग रही है और ऊपर से 500 कौन देगा तुम्हें इतने से काम का? इतना आसान तो काम था ये।
ऐसा मत करे, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उनके लिए ही तो इतना मुश्किल काम चुना कि कम से कम उनको खिला पिला सकूंगी। हाँ, तो मैंने जिम्मा थोड़ी लिया है तुम्हारी बेटियों का। तुम मेरा काम पूरा करो और अपने पैसे ले जाओ। अब ऐसे कैसे तुम्हें मैं आधे काम के पैसे दे दूं और ऊपर से तुम 500 मांग रही हो, हालांकि हमारी 300 में बात हुई थी। ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैंने भूखे पेट आपका इतना सारा काम किया, दोनों कमरे बिल्कुल ठीक से तैयार कर दिए और अब आप पैसे देने के वक्त मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें और मुझे मेरे पैसे दे दें। टूनी चिड़िया कालू कौवे के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर वो टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनता। फिर ऐसे ही टूनी चिड़िया उदास आंखों में आंसू लेकर अपने घर वापिस आ जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? पता है हमने आपका कितना इंतजार किया और हम लोग सुबह से भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूखे मारे हमारी हालत बहुत खराब हो रही थी और हम आपका ही पता करने के लिए बाहर आने लगे थे। शुक्र है माँ, आप घर वापस आ गई। तुम ऐसा करो, किचन के अंदर जो चीनी पड़ी हुई है वो लेकर आओ और मुझे 1 गिलास पीने के लिए पानी भी दो। उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ खाना बना कर देती हूँ। टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां किचन में जब चीनी लेने आती हैं तो वहाँ टूनी चिड़िया तबीयत खराब होने की वजह से गिर जाती है। तभी टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां उसको लाकर बिस्तर पर लिटा देती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। टूनी चिड़िया की तबीयत काम करने की वजह से बहुत खराब हो गई थी और ठंड भी थी। बेचारी टूनी चिड़िया एक तो गुर्बत की मारी, ऊपर से आ गई बीमारी। टूनी चिड़िया को देखने के लिए डॉक्टर उसके घर पर आती है, मगर टूनी चिड़िया की तबीयत काफी खराब होती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया को कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती है और टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं और उसको खाना बना कर देती हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों ने इतनी मेहनत क्यों की? मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाती तो मैं उठकर तुम लोगों के लिए भी खाना बना देती और अपने लिए भी। तुम लोगों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती हैं और उसका कितना ख्याल रख रही हैं। फिर वो सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब टूनी चिड़िया उठती है तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उसकी दोनों बेटियां ये देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं कि आज काम पर कौन जाएगा और खाने के लिए पैसे और दाना कहाँ से आएगा। तभी वो दोनों रोड पर कपड़ा लेकर खड़ी हो जाती हैं कि जैसे ही कोई गाड़ी आए तो वो गाड़ी को साफ करें और पैसे लें, मगर उनसे गाड़ी कोई भी साफ नहीं करवाता है। आखिरकार हार मानकर वो दोनों घर वापस आ जाती हैं। अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब उनके हालात कैसे ठीक होंगे और कब घर में सब वापस खुशहाल हो जाएगा। टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी अकेली दरख्त के ऊपर उदास बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार वो क्या कर सकती है अपनी माँ के लिए। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। बेटा, तुम इतनी ठंड में यहाँ बाहर बैठी क्यों हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई फिर? भला तुम्हारा इतनी ठंड में यहाँ क्या काम? तो दरअसल आंटी, मैं घर से बाहर किसी नौकरी की तलाश में आई हूँ। कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो मैं काम करके थोड़े पैसे कमा के घर ले जाऊँ। भला बेटा, तुम्हारी माँ काम पे है, उससे चाहिए कि वो काम करे। उन्हें क्या हुआ है जो तुम इतनी ठंड में बाहर कमाने निकल आई? बताओ बेटा जरा मुझे। वो दरअसल आंटी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बिस्तर से बिल्कुल भी उठ नहीं सकती। इसीलिए मुझे उनकी दवाइयाँ वगैरह खरीदने के लिए काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं इतनी ठंड में बाहर नौकरी की तलाश में आई हूँ, लेकिन सुबह से लेकर अब तक मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली। फिर वो चिड़िया चिंकी के साथ उसके घर पर जाती है और देखती है कि वाकई उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उस चिड़िया को इन पर रहम आ जाता है। फिर वो चिड़िया टूनी चिड़िया को डॉक्टर के लेकर जाती है और टूनी चिड़िया का इलाज करवाती है। वो चिड़िया इतनी रहम दिल होती है कि टूनी चिड़िया के सारे इलाज के पैसे खुद देती है और टूनी चिड़िया की तबीयत ठीक होने के बाद इनके घर वापस आती है और आकर कहने लगती है कि देखो, जब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक हो जाए तो तुम्हें मैं अपने घर का एड्रेस देती हूँ। तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी पे लगवा दूंगी।
तुम्हारी बेटियां तो इतनी प्यारी हैं, उनके ऊपर काम का बोझ बिल्कुल मत डालो। और बाहर ठंड भी कितनी है, ऐसे में अगर वो बेचारी बीमार हो गई तो तुम क्या करोगी? इसीलिए तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं तुम्हारे काम का बंदोबस्त कर दूंगी। बस तुम ठीक हो जाओ और फिर तुम मेरे घर आ जाना। अब मैं अपने घर चलती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर वो चिड़िया यहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया को नौकरी मिल जाती है और अब इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। टूनी चिड़िया की दोनों बेटियां भी बहुत खुश होती हैं और वो आपस में बहुत प्यार से रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं टूनी चिड़िया, आपकी दोस्त। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। ये चिड़िया बहुत ही अच्छी थी और सबकी मनपसंद चिड़िया थी। एक दिन टूनी चिड़िया को काम से अपने जंगल से बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए टूनी चिड़िया अपना घर छोड़ के दूसरे जंगल में अपने दोस्त के पास रहने आ जाती है। अभी टूनी चिड़िया अपना जंगल छोड़ के आती है कि वहाँ तूफान आ जाता है। तभी एक चील तूफान से बचने के लिए टूनी चिड़िया के घर के अंदर रहने आ जाता है। अरे ये घर तो खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं रहूँगा। वैसे भी बाहर इतना तेज तूफान है, मैं तो बिजली से मर ही जाता। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है मुझे ये घर खाली मिल गया। आज से इस घर के अंदर मैं रहूंगा, यहाँ कौन सा कोई रहता है। टूनी चिड़िया को खबर भी ना थी कि उसके घर पे चील ने कब्जा कर लिया है। वो अपनी दोस्त के यहाँ थी। तभी जंगल का तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता। मेरी प्यारी दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम अभी मेरे घर ही रुक जाओ। मैंने सुना है तुम्हारे जंगल में बहुत तूफान आया हुआ है, वहाँ जाकर तुम मुसीबत में ही फंस जाओगी। अभी यहीं रुक जाओ। हाँ सोनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, अभी जंगल में बहुत तेज तूफान आया है। मुझे भी कल पता लगा था, इस वजह से मैं अभी कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। जैसे ही तूफान रुकेगा मैं चली जाऊंगी। और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतनी जहमत दे रही हूँ मेरी प्यारी दोस्त। अरे नहीं, इसमें जहमत वाली भला क्या बात है, एक दोस्त से तो दूसरे के काम आता है। और वैसे भी तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जब भी मैं यहाँ छुट्टियों में आती हूँ तो तुम्हारे घर ही रुकती हूँ। अब तुम्हारे रुकने में भला मुझे क्या दिक्कत होगी। वहाँ दूसरी तरफ चील मजे से टूनी चिड़िया के घर के अंदर सो रहा होता है, जैसे उसे अब किसी चीज की फिक्र ही नहीं हो और उसकी जिंदगी बन चुकी हो। अगले रोज जंगल में बारिश रुक जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपने घर वापस आने का इरादा करती है। हमारे जंगल का तूफान रुक चुका है, अब मैं सोच रही हूँ वापस चली जाऊँ। कितने दिन तुम्हें भी जहमत दूंगी, मेरा काम तो हो ही गया है। तो अब मैं वापस चलती हूँ मेरी दोस्त, तुम अपना ख्याल जरूर रखना। और तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जब भी गर्मियों की छुट्टियाँ हो तो मेरे घर जरूर आना। अरे हाँ मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत काम काज है यहाँ पर, इस वजह से मैं माजरत चाहती हूँ। और तकलीफ की भला कैसी बात, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये बोल के शर्मिंदा मत किया करो। और फिर आखिरकार टूनी चिड़िया अपने जंगल में वापस आ जाती है। मगर जब टूनी चिड़िया अपने घर जाती है और चील को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है, तो टूनी चिड़िया को समझ नहीं आता अब वो क्या करे। अरे तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ओ चिड़िया, ये मेरा घर है, तुम कहाँ से मेरे घर के अंदर आ गई बिना पूछे और ऊपर से आके मुझे ही डांट रही हो। तुम्हारा घर कहाँ से? ये मेरा घर है। मैं तो जरा काम से 2 दिन के लिए पास वाले जंगल में गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ, तो तुम बराए मेहरबानी मेरे घर से निकल जाओ। अरे बस बस, झूठ की भी इंतहा होती है। 3 दिन से मैं इस घर के अंदर रह रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं आया। आज आके तुम कह रही हो ये घर तुम्हारा है। बस करो झूठी चिड़िया। ओ हेलो, मेरा नाम टूनी चिड़िया है और खबरदार मुझे झूठी कहा। ये घर मेरा है और ये घर मैंने ही अपने हाथों से बनाया है कुछ साल पहले। अब तुम आकर इस पे कब्जा कर रहे हो, इतने होशियार मत बनो, वरना मैं जंगल में सभी को इकट्ठा कर लूंगी और देखना तुम्हें इस जंगल में रहने के काबिल तक नहीं छोड़ूंगी। सो मेरे घर से जाने की तैयारी पकड़ो तुम। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये तुम्हारा घर है, लेकिन फिर ऐसा करो, अभी कुछ दिन मुझे इस घर में रहने दो, क्योंकि मैंने सुना है कल भी तूफान आना है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्लीज मुझ पर रहम करो और मुझे कुछ दिन यहीं पर रुकने दो। जैसे ही तूफान रुकेगा मैं अपने लिए नया घर बना लूंगा और चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही जंगल में फिर से तूफान आ जाता है और इस तूफानी बारिश की वजह से बेचारे कालू कौवे का घर टूट के गिर जाता है।
अरे यार, मेरा घर टूट के गिर गया इस बारिश की वजह से। पता नहीं ये बारिश क्यों जहमत बन रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे पहले ही चाहिए था कि अपना घर पक्का कर लेता ताकि बारिशों में मेरा घर ना टूटता। लेकिन बस मैं भी क्या करूं? मुझे क्या पता था कि अचानक से बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, टूनी चिड़िया से जाके मदद मांगता हूं। अरे टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरा घर बारिश की वजह से टूट के गिर गया है और अब मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? प्लीज टूनी चिड़िया। मुझे माफ करना कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करती, लेकिन बात असल में ये है कि मेरे घर में पहले ही एक मेहमान रुका हुआ है और तुम तो जानते हो मेरा घर छोटा सा है। इस वजह से इतने सारे लोग मेरे घर में नहीं आ सकते। बारिश की वजह से ये घर भी टूट जाएगा, इसीलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ऐसा मत कहो टूनी चिड़िया, अब मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कहाँ जाऊँगा टूनी चिड़िया? और इस जंगल में तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिसके यहाँ मैं ठहर जाऊँ। पर कालू कौवे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें भी इस घर में रख लिया तो वजन की वजह से ये घर भी टूट के गिर जाएगा। इसीलिए तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। टूनी चिड़िया कितनी मतलबी हो गई है। उसने मुझे इतनी तेज बारिश में थोड़ी देर रुकने का भी नहीं कहा था। मुझे तो टूनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ये बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूं, उसके बाद ही सोचता हूं मुझे क्या करना चाहिए है। बस अब यही हल है कि बारिश में भीग जाऊं। बस ऊपर वाला मेरे पर कृपा करे और मैं जिंदा रह जाऊं। ये ना हो कहीं मेरे ऊपर तूफानी बिजली गिर जाए। वहाँ टूनी चिड़िया और चील अपने घर के अंदर आराम से रुके होते हैं ताकि बारिश से बच जाएं। और फिर ऐसे ही अगले रोज बारिश रुक जाती है और मौसम खुशगवार हो जाता है। टूनी चिड़िया और चील के दरमियान दोस्ती गहरी होने लगती है। वो दोनों नदी किनारे आते हैं और वहाँ बैठ के खूब बातें करते हैं। बारिश के रुकते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया का घर गिराने आ जाता है और कुल्हाड़ी से टूनी चिड़िया का घर तोड़ देता है। तभी पीछे से अचानक चील आ जाता है और कालू कौवे पर हमला कर देता है क्योंकि उसने टूनी चिड़िया का घर तोड़ा। चील कालू कौवे को जान से मार देता है क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। फिर कुछ समय बाद चील और टूनी चिड़िया दोनों मिल के नदी किनारे अपने लिए मिट्टी के घर बनाते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहने लग जाते हैं क्योंकि अब इनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील टूनी चिड़िया की बाकी परिंदों से हिफाजत भी करता था और टूनी चिड़िया चील के लिए खाना बना देती थी। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बारिशों का मौसम आने वाला था, मगर फिर एक रात को बहुत तेज आंधी आ जाती है और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ टूनी चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी नीमो के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का शौहर किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए घर में ये दोनों अकेली थीं। और तभी बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। ओहो, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। मुझे तो लग रहा है ये बारिश जंगल में सब चीजें बहा कर ले जाएगी, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा घर भी कमजोर है। कहीं हमारा घर न गिर जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी ये कहने की देर ही थी कि कालू कौवे का घर गिर जाता है और वो घर से बाहर आ जाता है। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया से मदद मांगता है और टूनी चिड़िया के घर में रात रहने के लिए आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे रहने के लिए जगह दी, वरना इतनी बारिश में मैं लेकर अपनी बीवी को कहाँ जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया जैसी क्या बात है। दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है और तुम तो मेरे हमसाए हो और इतनी बारिश में भला तुम इसको लेकर कहाँ जाते, इसीलिए शुक्रिया अदा मत करो। और फिर पूरी रात इसी तरह से तूफानी बारिश होती रहती है। फिर सुबह होने के बाद बारिश रुक जाती है तो टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ आती है और उसका घर बनाने में कालू कौवे की मदद करती है ताकि कालू कौवा अपने घर में वापस से रह सके। फिर कालू कौवे का घर बनाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सुला रही होती है कि बाहर से फिर बारिश की आवाज आने लगती है और तूफानी बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश को शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट होते हैं कि टूनी चिड़िया का दरख्त हवा की वजह से बहुत तेज हिलने लगता है और अचानक से गिर जाता है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी घर के अंदर से फौरन बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर कालू कौवे से मदद मांगते हैं। कालू कौवे, दरवाजा खोलो, मेरा घर और दरख्त गिर गया है। अब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं अपनी बेटी को लेकर इस वक्त कहाँ जाऊंगी? इसीलिए तुम प्लीज ऐसा करो, दरवाजा खोलो और अंदर आने दो। जब कालू कौवा टूनी चिड़िया की मदद की आवाज सुनता है तो फौरन से बोलने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, मेरा घर भी बहुत कमजोर है, तुम जानती तो हो कल भी ये गिर गया था। मैं अगर तुम्हें अंदर आने दूंगा तो हम सारे ही गिर जाएंगे, इसीलिए तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। पर कालू कौवे, इतनी बारिश में मैं भला कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर? और नीमो को तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता और बारिश की वजह से हमारे पंख गीले हो गए हैं, तो हम मुड़कर कहाँ जाएंगे? तुम प्लीज दरवाजा खोल दो और हमें अंदर आने दो। मगर कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनता है। फिर जैसे तैसे करते हुए टूनी चिड़िया चील के घर में पहुंच जाती है और वहां आकर चील को सारी कहानी बताती है कि कैसे कालू कौवे ने उसकी मदद से इनकार कर दिया। कितनी बुरी बात है कि अपनी दफा उसने तुम्हारे से मदद मांग ली और जब तुमने मदद मांगी तो उसने इनकार कर दिया, हालांकि इतनी तेज बारिश हो रही थी और तुम्हारे साथ तो छोटी सी बेटी भी थी। बस ये कहने की देर थी कि कुछ ही देर बाद कालू कौवे का दरख्त भी गिर जाता है और कालू कौवा और उसकी बीवी घर से बाहर आकर गिरते हैं। इतनी तेज बारिश में अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाएं। वहाँ चील और टूनी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर अचानक से बाहर कालू कौवा आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर आवाजें लगाने लगता है। नहीं नहीं, मैं अपना दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगा। इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, अब बदले में इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। खड़ा रहे बाहर बारिश में। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसको अंदर आने दो, क्योंकि बारिश में वो बहुत भीग जाएगा और बीमार भी पड़ सकता है। इसीलिए तुम दरवाजा खोल दो और उसको अंदर आने दो। और इसमें भला उसकी बीवी का क्या कसूर है? उसको तो अंदर आने दो। बाहर कालू कौवा बारिश में भीग रहा होता है, मगर टूनी चिड़िया के कहने पर चील उन दोनों को अंदर बुला लेता है और एक रात रहने की इजाजत दे देता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ हो, मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे तुम्हें अपने घर में बुलाकर रहने देना चाहिए था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ अपनी गलती पर। कालू कौवा अपनी गलती की माफी मांग लेता है और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का शौहर टोनी कबूतर बारिश में कहीं फंसा होता है। फिर रात गुजरने के बाद सुबह सवेरे बारिश रुक जाती है और जंगल में सभी परिंदे वापस चहचहाने लगते हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ वापस आती है और अपने दोनों के घर वापस मरम्मत करती है और उन घरों को मजबूत बनाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए और उन्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए है, और खासकर उन लोगों की जिन्होंने कभी हमारी मदद की थी। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में दो दोस्तें रहती थीं। वो चिड़ियाएं आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं, हमेशा साथ उठती बैठती खाती पीती और एक ही घर में रहती थीं। अरे मेरी दोस्त, मुझे जरा काम से बाहर जाना है, इस वजह से तुम घर का ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिक्र मत करना। अरे टोनी चिड़िया, तुम बाहर जा रही हो, लेकिन जरा ध्यान से जाना। तुम्हें पता है ना, आज मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और खबरों में बताया है कि आज तूफानी बारिश आएगी। इसीलिए मेरी प्यारी सहेली, आज जरा ध्यान से जाना, ये ना हो कोई मुसीबत में आ जाओ, इसीलिए अपना ख्याल रखना। अरे तुम फिक्र मत करो, ये काम भी तो जरूरी है ना। अब घर में राशन भी खत्म हो गया है, इस वजह से मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने काम से घर से बाहर निकल जाती है और तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे जरा वक्त तो देखो, मैंने हालांकि टोनी चिड़िया को कहा भी था कि शाम होने से पहले घर आ जाए, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। और अब देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं बेचारी इस वक्त किस हाल में होगी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, अभी तक टोनी चिड़िया घर ही नहीं आई। अरे हमारे जंगल की ये दो चिड़ियाँ, टूनी और लाडो, इन्होंने तो मेरे नाक में दम करके रखा है।
पूरे जंगल में इनकी मशहूर दोस्ती, हर तरफ इनके चर्चे हो रहे हैं। मुझे तो इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है जाके दोनों को मार दूं, लेकिन नहीं, मैं एक प्लान बनाता हूँ, बहुत ही कामयाब प्लान। वहाँ टूनी चिड़िया बेचारी बारिश के अंदर फंसी होती है और उस तूफान में किसी दरख्त की टहनी पर बैठ जाती है और तूफान रुकने का इंतज़ार करने लगती है। तभी इस सख्त तूफान में कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर को कुल्हाड़ी से काटने लग जाता है। कालू कौवा जानता था कि उसके घर के अंदर टूनी चिड़िया की दोस्त है और टूनी चिड़िया घर से बाहर गई है। तभी टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और उसकी दोस्त भी घर समेत गिरकर मर जाती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर के पास आती है और घर को गिरा देखकर डर जाती है। टूनी चिड़िया को समझ नहीं आती कि अब उसे क्या करना चाहिए है, क्योंकि टूनी चिड़िया की दोस्त घर के अंदर थी। टूनी चिड़िया को पता लगता है कि उसकी दोस्त घर के नीचे आके मर गई है और वहीं पर टूनी चिड़िया को कालू कौवे का एक पंख नजर आता है और टूनी चिड़िया प्लान समझ आती है कि ये सब कालू कौवे ने किया है, क्योंकि घर खुद ब खुद नहीं गिर सकता था। टूनी चिड़िया फौरन से कालू कौवे के घर आ जाती है। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया है? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे सब कुछ सच सच पता लग गया है। तुम्ही ने मेरा घर तोड़ा है। अरे कैसी बातें कर रही हो? मेरे पर आकर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा अच्छी तरह जांच पड़ताल तो कर लो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बारिश में अपने घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। मेरे पर आके ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ। टूनी चिड़िया आ गई है बड़ी इल्ज़ाम लगाने। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उस घर में मेरी दोस्त थी। जब तुमने घर तोड़ा तो वो घर के अंदर ही नीचे आके मर गई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कालू कौवे। ओह, तो वो मर गई। अच्छा हुआ। वैसे भी उसने इस जंगल में सबको तंग करके रखा था। धरती पर बोझ ही थी वो भी। चलो अच्छा हुआ। खैर मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मेरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा कालू कौवे। देखना, इसका बदला तुमसे मैं जरूर लूंगी। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और तुम पछताओगे अपनी गलती पर कालू कौवे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में और तुमने उसको भी छीन लिया मुझसे। फिर टूनी चिड़िया दरख्त की टहनी पर आके बैठ जाती है और प्लान बनाने लगती है। सबसे पहले टूनी चिड़िया अपने लिए खूबसूरत सा मिट्टी का नया घर बनाती है जिसमें वो रह सके, क्योंकि पुराना घर तो उसका टूट चुका था। उसके बाद टूनी चिड़िया अपना शातिर दिमाग चलाकर एक प्लान बनाती है और कालू कौवे के घर जाकर एक सेब खाती है। टूनी चिड़िया को यकीन होता है कि उसका ये प्लान जरूर काम करेगा। फिर टूनी चिड़िया इंतजार करने लगती है। तभी कालू कौवा अपने घर आता है और सेब देखकर बोलता है, अरे ये इतने लाल सेब कहाँ से आ गए मेरे घर में? अरे यार, वैसे भी आज बहुत भूख लगी थी। ये इतने लाल सेब पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। चलो अच्छी बात है, मैं खा लेता हूँ। हो सकता है मेरा कोई बचपन का दोस्त आया हो और मेरे लिए यहाँ पर तोहफा छोड़ गया हो। चलो अभी इसको खाता हूँ यार, बहुत भूख लगी है। फिर उसके बाद कालू कौवा मजे से वो लाल सेब खाने लग जाता है। कालू कौवे को जरा भी खबर नहीं होती और ऐसे ही 5 मिनट गुजरने के बाद कालू कौवा मर जाता है, क्योंकि वो सेब जहरीले सेब थे और ये सारा टूनी चिड़िया का प्लान था कालू कौवे से बदला लेने का। कालू कौवे को पता भी नहीं था कि वो सेब में जहर है। वो तो बस मजे से सेब खा गया और अपनी मौत मर गया। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है वो एक दिन उसमें खुद भी गिर जाता है। ऐसे ही टूनी चिड़िया का ये प्लान काम कर गया और टूनी चिड़िया खुश हो गई। आखिरकार उसने अपनी दोस्त का बदला ले ही लिया और कालू कौवे को मार दिया। मगर टूनी चिड़िया उदास भी थी, क्योंकि उसने अपनी एक बहुत कीमती और अच्छी साथी और दोस्त को खो दिया था, जिसके साथ उसने बचपन से अपने माँ बाप के जाने के बाद से ज़िंदगी गुजारी। अब टूनी चिड़िया अपने इस नए मिट्टी के घर में अकेली रहती थी और उसको अपनी दोस्त की बहुत याद आती थी। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। उस कौवे का नाम कालू था और वो बहुत ही बेवकूफ था। ये कालू कौवा कुछ करता तो नहीं था, बस रात के वक्त निकलता था और लोगों के घरों में नाकाम चोरियां करने की कोशिश करता था।
फिर एक दिन ऐसे ही कालू कौवा किसी के घर चोरी करने जाता है। जब वो घर के बाहर आता है तो चील की आंख खुल जाती है और वो देखकर कहने लगता है, अरे कौन कमबख्त इतनी रात को आ गया? मुझे तो लगता है ये कालू कौवा चोर है, वही बेवकूफ कौवा, न जाने ये कब सुधरेगा। चलो अभी चलता हूँ इसके पास, इससे पहले कि ये खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाए। अरे ओ कालू कौवे, क्या कर रहा है तू यहाँ पर इतनी रात को? तुम्हें नहीं पता मैं चोरी कर रहा हूँ? आहिस्ता बोलो वरना घर के अंदर वाला मालिक उठ जाएगा। मैं खिड़की तोड़कर अंदर जा रहा हूँ। ओहो, ऐसे चोरी भला कौन करता है? खिड़की तोड़कर अंदर जाओगे तो वो क्या खिड़की के शोर से नहीं उठेगा बेवकूफ? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये तुमने बिल्कुल सही बात की है। अब मुझे क्या करना चाहिए है? तुम ही कोई मशवरा दे दो। मैंने सुना है तुम इस गांव के सबसे अक्लमंद चोर हो। अगर तुम इतने ही अक्लमंद चोर हो तो जाओ चांद चोरी कर कर दिखाओ। ऐसी चीजें तो हर कोई चोरी कर लेता है। चांद को चोरी करो और फिर मुझे साबित करो कि तुम अक्लमंद चोर हो। चांद? अरे वो भला कैसे चोरी हो सकता है? मैंने तो नहीं सुना आज तक किसी ने चांद को चोरी किया हो। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है कि अगर तुम अक्लमंद हो तो जाकर चांद चोरी कर कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम वाकई अक्लमंद चोर हो। हाँ हाँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। अब देखना तुम, मैं तुम्हें चांद चोरी करके ला कर दिखाऊंगा। चांद तो मेरे बिल्कुल पास होगा, तुम देखना सही। बस मुझे एक रात का वक्त दो। ये कहने के बाद चील तो अंदर जाके आराम से सो जाता है, मगर कालू कौवा प्लान बनाने लगता है। फिर अगली सुबह कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा सोच रहा होता है कि कैसे वो चांद को चुरा सकता है और साबित कर सकता है। आखिरकार रात हो जाती है और चांद निकल आता है। अब कालू कौवा सोचता है, अरे मैंने सुना है कि चमगादड़ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर वो नाखूनों से ट्रक को भी पकड़ ले तो उसको भी खींच सकती है। तो क्यों ना मैं भी चमगादड़ का ही इस्तेमाल करूं। हाँ, यही सही आइडिया है। तभी कालू कौवा इसी प्लान के ऊपर अमल करते हुए चमगादड़ को एक लंबी सी रस्सी के साथ बांध देता है और चांद की तरफ देखने लगता है। फिर कालू कौवा उस चमगादड़ को चांद की तरफ उड़ा देता है। कालू कौवे को अपने इस प्लान पर पूरा भरोसा होता है। तभी चमगादड़ आसमान को चीरता हुआ चांद की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होता है और जाकर चांद के साथ उल्टा लटक जाता है। चमगादड़ को उल्टा लटक देखकर कालू कौवे को अपने ऊपर भरोसा होने लग जाता है कि उसका प्लान कामयाब हुआ। तभी कालू कौवा उस रस्सी को बहुत जोर से खींचने लगता है और चांद को अपनी तरफ खींच लाता है। कालू कौवे ने आखिरकार चांद को चुरा ही लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मैं सबसे अक्लमंद चोर हूँ। देखो, मैंने चांद को चुरा लिया है। अब तो वो चील मेरा यकीन करेगा कि मैं सबसे अक्लमंद चोर हूँ। अभी जाकर उस चील को ये चांद दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा उस चांद को लेकर फौरन से चील के पास आ जाता है और साबित कर देता है कि कालू कौवा बेवकूफ नहीं है। चील जब ये देखता है कि कालू कौवा वाकई चांद को चुरा कर ले आया है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे, ये तुमने कैसे किया? तुम चांद को जमीन के ऊपर कैसे ले आए? मैं ये देखकर हैरान हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। ये तो एक राज है। मैंने जैसे भी किया, लेकिन देखो, मैंने साबित कर दिया कि मैं एक अक्लमंद चोर हूँ, न कि कोई बेवकूफ। तुम्हें एक रात का वक्त दिया था और देखो, पूरे टाइम के ऊपर मैं चांद को चुरा कर ले आया हूँ। अरे हाँ, वाकई मैं तो मान गया, तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो। अब मैं तुम्हें एक नई स्कीम बताता हूँ। तुम इस चांद को म्यूजियम में रख दो, उससे तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकोगे। फिर चील के कहने पर कालू कौवा उस चांद को म्यूजियम में रखवा देता है और म्यूजियम में रखवाते ही दूर दूर से परिंदे और लोग उस चांद को देखने आते हैं और हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही दिन में कालू कौवा अच्छी खासी रकम कमाकर अमीर हो जाता है और बहुत खुश होता है। वहाँ दूसरी तरफ आसमान पे कोई चांद नहीं। फिर चांद की आखिरी तारीखों में आहिस्ता आहिस्ता चांद म्यूजियम से गायब होने लग जाता है। फिर जब ये बात कालू कौवे को पता लगती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और फौरन से चील के पास जाता है। अरे यार, वो जो चांद मैंने चुराया था वो तो गायब हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिरकार म्यूजियम से वो चांद गायब कैसे हो सकता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है चांद अपनी जगह पर वापस चला गया हो। हालांकि चील बहुत चालाक था, वो जानता था कि चांद महीने की आखिर में गायब हो गया है और फिर एक नया चांद वापस आ जाएगा। तो फिर ऐसा करो, वो जो जगह मैंने म्यूजियम में खरीदी थी वो तुम रख लो और उसकी मुझे अच्छी कीमत दे दो।
क्योंकि वो जगह बहुत मशहूर है। फिर चील कालू कौवे को अच्छी खासी रकम देकर म्यूजियम की वो जगह कालू कौवे से खरीद लेता है, क्योंकि चील जानता था कि चांद जल्द ही वापस आ जाएगा और वो कालू कौवे को बेवकूफ बना रहा है। फिर चांद की 14 तारीख को चांद वहाँ पर वापस आने लग जाता है। जब ये बात चील को पता लगती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर लोग चांद देखने वापस आने लगते हैं और चील इसी तरह से बहुत अच्छी खासी रकम बना लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बेवकूफ़ी करता हुआ फिर से घरों में चोरियां करना शुरू कर देता है। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और जंगल में शदीद बर्फबारी पड़ रही थी। टूनी चिड़िया अपने शोहर और एक बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। ये लोग कुछ खास अमीर नहीं थे और ना ही इनके पास खाने को और पहनने को कुछ था। ठंड से बचने के लिए टोनी कबूतर सुबह सवेरे जाता था और जंगल से दरख्त की लकड़ियां काट कर घर लेकर आता था और इसी लकड़ियों को जलाकर ये सब लोग ठंड से बचते थे और राते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी और राजा की तरफ से हुक्म आया कि अब जो भी लकड़ियां काटेगा उसको सजा दी जाए। फिर टोनी कबूतर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वो ठंड से कैसे बचेगा। तभी कालू कौवा वहाँ आता है। अरे टोनी कबूतर, कैसे हो? बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। क्या हुआ, यहाँ बैठे हो? खैरियत है? घर में सब ठीक तो है? टूनी चिड़िया कैसी है? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन क्या बताऊँ, बस कुछ समझ नहीं आ रही। एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ और उसी के बारे में बैठा सोच रहा था यहाँ पर। अरे कैसी बात टोनी भाई, मुझे बताओ। आप जानते हैं इस पूरे जंगल में मेरे से होशियार तो कोई है नहीं। दूर दूर से परिंदे मेरे से मशवरा लेने आते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या बात है, मैं आपको हल बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि तुम जानते हो सर्दियाँ कितनी बढ़ गई हैं। वो तो अच्छा हुआ आज थोड़ी धूप निकली है, मगर तुम जानते हो ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा है और मैं जंगल से लकड़ियां काट कर ही अपने घर में जला रहा था ताकि सर्दियों से बच सकूं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े पहनने के लिए तो है नहीं मेरे पास और ना ही इतने पैसे हैं। तुम जानते हो मेरी छोटी सी बेटी भी है, तो उसको अब ठंड से कैसे बचाऊं, क्योंकि जंगल में लकड़ियां काटने से मना कर दिया है और जो लकड़ी काटेगा तो उसको सजा होगी। अब यही बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब हमारे जंगल में ही लकड़ियां काटने से मना किया है तो तुम थोड़ी और मेहनत करो और आगे वाले जंगल में चले जाओ, वहां से लकड़ियां काट लो। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है वैसे, लेकिन तुम्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और बोझ भी उठा कर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लकड़ियां भारी हैं और इतनी दूर लेकर आओगे। मगर अब इसके अलावा तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। फिर टोनी कबूतर घर आ जाता है और घर आकर टूनी चिड़िया को सारी बात बताने लग जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब क्या करना चाहिए है। जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है, अब हम सर्दी से कैसे बचेंगे और अपनी बेटी को सर्दी से कैसे बचाएंगे? ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता भी है कितनी ज्यादा ठंड है और हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो तो अभी ठीक से उड़ भी नहीं पाती। हम उसको ठंड से कैसे बचाएंगे? और गर्म कपड़े लेकर देने के तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम कैसे रहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन मेरे पास एक हल है। मुझे कालू कौवे ने मशवरा दिया कि पास वाले जंगल के दरख्तों से लकड़ियां काटकर यहाँ ले आऊं। इस तरह से हम लकड़ियां जलाकर बच सकते हैं। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारे जंगल में लकड़ियां काटने पर तो पाबंदी लगा दी है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके सिवा। टोनी कबूतर ये कहने के बाद फिर से बाहर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, मगर टोनी कबूतर के पास इस चीज के अलावा कोई हल नहीं था। तभी टोनी कबूतर रात को कुल्हाड़ी पकड़ता है और दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ता है। टोनी कबूतर ठंड में जब दूसरे जंगल पहुंचता है तो लकड़ियों को देखकर बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसे मिल गई। वो लकड़ियां काटने ही लगता है तो अचानक से वहाँ पर 2 चील आ जाते हैं और टोनी कबूतर से कहने लगते हैं, ओए, शर्म नहीं आती लकड़ियां काटता है? कहाँ से आया है तू? यहाँ पर आकर हमारे जंगल में लकड़ियां काटने की हिम्मत कैसे हुई? इसको पकड़ो और इसको उस्ताद के पास लेकर जाते हैं। आज तो इसकी तिक्का बोटी खाएंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आकर हमारे से बिना पूछे हमारे दरख्त की लकड़ियां काट रहा है? तू चल बेटा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी वो टोनी कबूतर को उठाकर अपने बॉस के पास ले आते हैं।
वहाँ आकर टोनी कबूतर से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं और टोनी कबूतर से वो बॉस पूछने लगता है कि हाँ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आके दरख्तों की लकड़ियां काट रहा है और हमसे पूछा तक नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा बच्चे। आज तो हम तेरी तिक्का बोटी खाएंगे। बहुत दिनों से हमें शिकार का इंतजार था और आज तो तू खुद ही चलकर हमारे पास आ गया है। अब तू यहाँ से नहीं बचकर जा सकता। अरे बॉस, मेरी बात तो सुन ले। मैं इस जंगल में लकड़ियां काटने आया हूँ क्योंकि मेरी जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है और वहाँ जो भी लकड़ी काटेगा उसको सजा दी जाएगी। इसीलिए मैं इस जंगल में आया क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है और आप जानते हैं सर्दियाँ कितनी बढ़ गई हैं। अब उसको ठंड से बचाने के लिए मैं रात को लकड़ियाँ जलाता हूँ। अब वहाँ से तो लकड़ियाँ काट नहीं सकता, इसीलिए मैं लकड़ी तलाश करते करते आपके जंगल में आ पहुँचा। अब मुझे नहीं पता था कि ये आपका इलाका है, मुझसे गलती हो गई, मगर मुझे जाने दें, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ठंड काफी बढ़ चुकी है। रात को हमें भी बहुत ठंड लग रही थी, मगर ये लकड़ियां जलाने वाली स्कीम नहीं समझ आई। ये तुम कैसे करते हो? और ये आइडिया हमें भी नहीं आया क्योंकि लकड़ियां जलाना तो इतना मुश्किल है। दो पत्थरों को आपस में रगड़ो और उसके बाद जाकर जब चिंगारी पैदा हो तो आग लगती है। अरे बॉस, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। अब तो लाइटर है, उसी से आग जलाते हैं सब लोग। इतना आसान हो गया है अब तो आग जलाना। आपको नहीं पता क्या? आप तो अभी बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। ये कहने के बाद टोनी कबूतर लाइटर निकालता है और लाइटर से आग जलाकर दिखाता है। उस आग को जलता देखकर चील और उसके साथियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरान हो जाते हैं। अरे अरे, ध्यान से देखना देखना, कहीं आग न लग जाए। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम कोई जादूगर हो? ये अचानक से तुमने इतनी सी प्लास्टिक की चीज से आग कैसे निकाल ली? हम तो यहाँ पत्थर को रगड़ रगड़ कर थक जाते हैं और फिर आग लगती है। टोनी कबूतर के इस लाइटर को वो चील पहली दफा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और टोनी कबूतर को कोई जादूगर समझता है। टोनी कबूतर उस लाइटर को जमीन पे रख देता है और उसके दिमाग में तभी एक प्लान आता है और वो कहने लगता है कि ये लाइटर मेरी तरफ से आप रख लें। मेरे पास इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। इससे आपको आग जलाने में आसानी रहेगी और आप ठंड से बच सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? ये लाइटर मैं रख सकता हूँ? इससे तो आग जलाना बहुत आसान है और रात को जो इतनी ठंड लगती है और हम लकड़ियाँ नहीं जला पाते, अब वो कर पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये लाइटर रख सकते हैं और इससे अब आप आसानी से आग जला सकते हैं और लकड़ियाँ जलाकर आग सेके। आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपको आग जलाना भी आसान होगी। मगर जब इस लाइटर की गैस खत्म हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको दूसरा लाइटर दे दूंगा क्योंकि इस लाइटर में गैस डलती है और उसी गैस से ये लाइटर चलता है। चील टोनी कबूतर की इस हरकत से बहुत खुश हो जाता है और टोनी कबूतर को उस जंगल से लकड़ियां काटने की इजाजत दे देता है। टोनी कबूतर भी बहुत खुश होता है कि अब वो लकड़ियां अपने घर ले जा सकता है और अपनी बेटी को ठंड से बचा सकता है। टोनी कबूतर उधर से दरख्त की कुछ लकड़ियां काटता है और अपने घर ले जाने की तैयारी करने लगता है। फिर टोनी कबूतर लकड़ियां लेकर घर आ जाता है और घर में वो लोग आग जला लेते हैं और सर्दी से बच जाते हैं। टोनी कबूतर और टूनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हर रोज टोनी कबूतर उस जंगल से लकड़ियां लेने आ जाता है और चील भी उसको लकड़ियां दे देता है क्योंकि टोनी कबूतर ने उनकी भी मदद की, तो बदले में उन्होंने टोनी कबूतर की और सारी सर्दियां ऐसे ही गुजर जाती हैं और फिर गर्मियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि हमें अपना दिमाग सही जगह पर और सही वक्त पर चलाना चाहिए और दूसरा ये कि अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसकी मदद जरूर करनी चाहिए है, जैसे उस चील ने टोनी कबूतर की मदद की। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon. एक दफा का जिक्र है, अमेज़न के घने जंगलों में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर दो चिड़ियां रहती थीं। उन चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और उड़ भी नहीं सकते थे, मगर ये दोनों चिड़िया की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। पूरे जंगल में इनकी दोस्ती मशहूर थी। ये दोनों इकट्ठे खाना लेने जाती और इकट्ठे ही अपने बेटियों का ख्याल रखती थी। मगर फिर एक दिन ये दोनों चिड़ियाँ अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आईं। तभी इनकी दोस्त कहने लगी कि
अरे तुम लोगों को पता है जंगल में एक नया चील आया है और वो हर एक को खा रहा है। और मैं तुम लोगों को फिर से कह रही हूँ, अपने बच्चों का खास ख्याल रखना और उन्हें घोंसलों से बाहर ना आने देना, वरना वो सबके बच्चे खा जाएगा। अपनी दोस्त की ये बात सुनकर दोनों चिड़ियाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। अरे सोनी चिड़िया, तुमने सुना वो क्या कह रही थी? हमारे जंगल में एक चील आ गया है जो सब परिंदों के बच्चे खा रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरी बात है। अब हम अपने बच्चों की कैसे हिफाजत करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे बच्चे घोंसले से बाहर आ गए और वो चील आ गया? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। टोनी चिड़िया, अब तुम ही बताओ हम लोग क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी तो हमारे बच्चे उड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसका एक हल है। जब हम दाना लेने जाते हैं तो हम में से कोई एक बच्चों के पास रुककर उनकी हिफाजत करे और दूसरा जाकर दाना ले आए। यही ठीक है। फिर अगले दिन फैसले के मुताबिक सोनी चिड़िया बच्चों के पास रुकती है ताकि वो उनका ख्याल रख सके और चील आए तो बच्चों को बचा सके। और टूनी चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। ऐसे ही अगले रोज टूनी चिड़िया बच्चों के पास रुकती है ताकि वो बच्चों का ख्याल रखे और सोनी चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है। इसी तरह एक चिड़िया बच्चों के रखती है और एक दाना इकट्ठा करती है। जब चील को पता लगता है कि टूनी चिड़िया और सोनी चिड़िया की दो छोटी छोटी बेटियां हैं तो वो लालच में आ जाता है। मुझे पता लगा है इस जंगल में 2 चिड़िया हैं और उनकी 2 छोटी बेटियां भी हैं। आज तो पेट भर के खाऊंगा मैं। चील अपने ठिकाने से उठकर टूनी चिड़िया के दरख्त पे आकर बैठ जाता है और उसकी बेटी को देखने लगता है। तभी टूनी चिड़िया उसके इरादे समझ जाती है और फौरन से उड़कर चील के ऊपर हमला करने लगती है। इतनी ही देर में पीछे से सोनी चिड़िया भी आ जाती है। चील जब दोनों चिड़िया को अपनी तरफ आता देखता है तो डर कर वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। वो दोनों चिड़िया तो अचानक ही मेरे ऊपर हमला करने लगी थी। मेरे ख्याल से अब मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा तो नहीं। शिकार तो मैं इन्हीं का करूंगा, लेकिन कोई प्लान बनाता हूँ। आज तो बच ही गए। ये तो अच्छा हुआ सोनी चिड़िया तुम भी वक्त पर आ गई, वरना मैं अकेली उस चील का सामना करती। ये तो अच्छा हुआ तुम भी आ गई और वो डर के भाग गया। आज तो हम लोग बार बार बच गए, वरना अगर वो चील आकर हमारे बच्चों को खा जाता तो। शुक्र है मैं भी घर टाइम से आ गई, वरना चील हमारे बच्चों को खा जाता। शुक्र है। फिर अगला दिन हो जाता है मगर वो चील हार नहीं मानता। वो अपने ठिकाने पर बैठा नया प्लान बना रहा होता है कि अब वो क्या करे, किस तरह से वो इन दोनों की बेटियों को खा सकता है, क्योंकि वो अपना शिकार हाथ से जाने तो नहीं देगा और वो बहुत जालिम चील था। तभी पूरे जंगल में उसकी दहशत थी। वहाँ दूसरी तरफ सोनी चिड़िया अपने लिए दाना इकट्ठा करने जाती है तो थक कर एक दरख्त पर बैठ जाती है। वहाँ पर दरख्त पर बैठा देखकर चील सोनी चिड़िया के पास आता है। वो सोनी चिड़िया के पास आकर उससे कहने लगता है कि अरे चिड़िया, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे बच्चे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी हमला न करता, मगर तुम्हारी दोस्त ने तो तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। वो मेरी बचपन से पक्की सहेली है। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? बल्कि वो तो मेरे बच्चों की भी हिफाजत कर रही थी। मुझे यकीन है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम्हारी आंखों पे पट्टी जो बन गई है, मत मानो मेरी बात। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और चील आया तो वो तुम्हारी बेटी को खा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चील की ये बात सुनकर सोनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। क्या वाकई टूनी चिड़िया ने उसकी बेटी को नहीं बचाना था? इसी वजह से सोनी चिड़िया फैसला करती है कि वो टूनी चिड़िया को आजमाएगी और कल भी वही दाना लेने जाएगी और दूर से उसको देखेगी। ठीक है सोनी चिड़िया, आज तुम बच्चों का ख्याल रखना और चील से भी ध्यान से रहना। अब मैं चलती हूँ दाना लेने के लिए। तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं, आज तो दाना लेने मैं ही जाऊंगी। तुम ऐसा करो, तुम बच्चों के पास रहो और दाना मैं ले आती हूँ। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो दाना मैं ही ले आऊंगी। अरे नहीं सोनी चिड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दाना लेकर आती हूँ। कल तो तुम लाई हो, आज फिर तुम लेने जाओगी तो जाओगी, लिए तुम कड़ा लेकर आती हूँ। अरे टूनी चिड़िया, अब मान भी जाओ। ऐसी क्या बात हो गई भला? कोई बात नहीं, आज दाना मैं ले आती हूँ। तुम बच्चों का ख्याल रखो और थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी अगर चील आ गया तो तुम ही मेरे बच्चों की हिफाजत करना। दाना लेकर आती हूँ, ठीक है?
ये कहकर सोनी चिड़िया दूर जाके एक दरख्त पर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया को देखने लगती है कि अगर उसकी बेटी पर कोई मुसीबत आए तो वो बचाती है या नहीं। जब चील को ये बात पता लगती है कि फिर से सोनी चिड़िया दाना लेने गई है तो वो टूनी चिड़िया की तरफ बढ़ता है और दोबारा उसकी बेटी पर हमला करने लगता है। टूनी चिड़िया तो अपनी बेटी के पास बैठी थी, तभी चील मौका देखकर सोनी चिड़िया की बेटी पर हमला करने लगता है तो टूनी चिड़िया झट से उड़कर चील से लड़ने लग जाती है। इसी लड़ाई के अंदर ही टूनी चिड़िया घायल होकर गिर जाती है और चील को सोनी चिड़िया की बेटी को पकड़ने का मौका मिल जाता है। वो बच्चियां इतनी छोटी थीं कि खुद तो उड़ नहीं सकती थी और ना बच सकती थी। मन ही मन चील बहुत खुश होता है कि आज उसे शिकार मिल ही गया। वहाँ दूसरी तरफ जब सोनी चिड़िया दूर से ये देखती है तो फौरन से उड़कर चील की तरफ आती है। चील सोनी चिड़िया को आता देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सोनी चिड़िया चील का पीछा कर रही होती है, तभी कालू कौवा इन दोनों को देखता है। अरे अरे, ये दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे कहीं मुफ्त खाना बट रहा हो और ये दोनों उसकी रेस लगा रहे हैं कि कौन पहले पहुंचता है। चलो मैं भी चलता हूँ, हो सकता है मुझे भी कुछ मुफ्त खाने को मिल जाए। ये कहकर कालू कौवा भी उनके पीछे उड़ने लगता है। चील सोनी चिड़िया को अपने ठिकाने पर ले आता है और वहाँ बैठ जाता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं आसानी से तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हारा गोश्त खा जाऊंगा। जैसे ही चील सोनी चिड़िया पर हमला करने लगता है वहाँ से कालू कौवा आ जाता है और चील से लड़ने लग जाता है। कालू कौवा चील से लड़ता है और सोनी चिड़िया की जान बचा लेता है। चील को तो दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं और सोनी चिड़िया की जान बच जाती है। अरे टोनी चिड़िया, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर बिला वजह ही शक किया। मैं दरअसल चील के बातों में आ गई थी। उसने कहा था कि टोनी चिड़िया सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, तुम्हारे नहीं। इसीलिए मैंने आज बहाना करके दाना लेने गई। मुझे माफ करना, लेकिन तुमने मेरे बच्चों की भी बहुत हिफाजत की। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ और तुम्हारा शुक्र भी अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बच्चों का इतने अच्छे से ख्याल रखा। टोनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम तो जानती हो हम बचपन से ही कितनी अच्छी दोस्तें हैं और तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटियों की तरह है। बस इसीलिए मैंने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। अब इसमें शुक्रिया मत कहो और ना ही शुक्रिया कहकर मुझे बार बार शर्मिंदा करो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अरे कोई मेरा भी तो शुक्रिया अदा करो, जिसने जान पर खेलकर चील से लड़ाई की और सोनी चिड़िया की जान बचाई। मैं तो खाना खाने चला था, लेकिन मुझे क्या पता वहाँ ये हो रहा था। लेकिन अचानक से मेरा दिमाग काम किया और मैंने चील के ऊपर हमला कर दिया और सोनी चिड़िया की जान बचा ली। अब जल्दी से मेरा भी शुक्रिया अदा करो। अरे हाँ, कालू कौवे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारा भी बहुत ही शुक्रिया, और आइंदा से तुम भी हमारी दोस्ती में शामिल हो गए हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई। इस तरह से टूनी चिड़िया और सोनी चिड़िया के दरमियान गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और कालू कौवा भी उनका दोस्त बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो गलतफहमियां हों उसको दूर कर लेना चाहिए है। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने शोहर टोनी कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक सास भी थी जो कि सारा घर संभालती थी और टूनी चिड़िया दिन भर आराम करती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। वहाँ दूसरी तरफ टोनी कबूतर घर से बाहर जाता और अपने बाग को संभालता था। अरे ओ टोनी चिड़िया, घर के कभी काम भी कर लिया करो। जब देखो आराम से बैठी रहती हो। मजाल है कि घर के कामों में तुम थोड़ा मेरा हाथ ही बटा दो। मेरी तो उम्र भी हो गई है, भला तुम ही बताओ मैं कितने काम करूंगी घर के। मुझसे नहीं होते ये घर के काम वाम, और ना ही मुझे ये कोई काम करने आते हैं। और वैसे भी आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रह रही। मैं कहाँ काम करूँ, मैं तो बस आराम करूँगी। अरे तुम्हारे तो इतने नखरे हैं, मैं भला क्या करूं?
क्या तुम्हें मैं इसीलिए इस घर में ब्याह कर लेकर आई थी? अब आने दो ज़रा टोनी को, वो ही तुम्हें सीधा करेगा। मेरी तो बस तुम सुनती नहीं हो। अब वो ही तुम्हें अपने तरीकों से समझाएगा कि घर के कामों में भी थोड़ी मदद कर दिया करो। फिर शाम को टोनी कबूतर घर आता है तो उसकी माँ टूनी चिड़िया की सारी शिकायतें तैयार रखकर बैठी होती है। टोनी मेरे बेटे, तुमसे ज़रा मैंने कुछ बात करनी है। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये मेरे घर के कामों में कोई मदद नहीं करती। पूरा दिन मैं अकेली बूढ़ी जान घर के काम करती हूँ। भला मजाल है ये मेरे साथ थोड़ी सी काम में मदद करवा दे। अब तुम ही इसे समझाओ, मेरी बात तो ये समझती नहीं। इतने तो काम करती हूँ, पहले सुबह नाश्ता करो, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाओ, फिर चाय पियो और फिर रात का खाना खाकर सो जाओ। मैं तो थक जाती हूँ, अभी भी बहुत थकी हूँ। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, जाकर आराम ही कर लो। सुबह से जाग रही हो और काम भी तो बहुत किए हैं तुमने, तो तुम्हारा तो आराम करना बनता है। तो ऐसा करो, तुम जाओ और आराम करो। आपको कितना ख्याल है मेरा। मुझे वैसे भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी और आजकल मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो आप सही कह रही हैं, मुझे आराम करना चाहिए है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चली आराम करने। ये कहकर टूनी चिड़िया आराम करने चली जाती है और सभी को हैरान कर देती है। अरे टोनी बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से होगी जो मेरी घर के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं किया करेगी। मुझे तो यही लगा था कि घर में बहू लेकर आऊंगी तो मेरे कामों में हाथ बटा दिया करेगी, लेकिन मजाल है ये ज़रा से भी मदद करे मेरी। तो ऐसा करो कि तुम कल से इसे अपने साथ ही काम पर लेकर जाओ, यही सही रहेगा। हाँ भाई, अब मैंने यही फैसला किया है कि कल से बहू तुम्हारे साथ ही काम पर जाएगी। अब यही सही है, रोज़ रोज़ के मसलों से झगड़ों से यही सही रहेगा कि बहू तुम्हारे साथ ही काम पर जाए। ना वो घर में होगी और ना ही घर में कोई टेंशन रहेगी। फिर अगले दिन टोनी कबूतर अपनी माँ के कहने पर टूनी चिड़िया को अपने साथ बाग में ले आता है और बाग में लाकर टूनी चिड़िया से कहने लगता है कि सुनो टूनी चिड़िया, तुम ऐसा करो, अब इस बाल्टी के अंदर मिट्टी भर के लाओ और इस पौधों में लाकर डाल दो। मिट्टी तुम्हें नदी के पास से मिल जाएगी, तो जल्दी करो। अरे देखो तो, मैं भला इतनी भारी बाल्टी कैसे उठा के लाऊंगी? मुझसे तो घर के काम नहीं होते हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि मिट्टी की बाल्टी उठा कर लाऊं, और वो भी इतनी दूर से। मुझसे तो नहीं होगा ये काम। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि तुम कामचोर बनी रहो और कोई काम ना करो। इसीलिए ये बाल्टी में मिट्टी भर के लाओ, जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। टूनी चिड़िया बाल्टी लेकर नदी के किनारे पर आ जाती है, मगर टूनी चिड़िया को बाल्टी में मिट्टी भरने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसीलिए वो कहती है, ओहो, अब भला कौन भरे इस बाल्टी के अंदर मिट्टी? मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, सोच रही हूँ कुछ देर आराम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। पहले कुछ देर आराम कर लेती हूँ यही पेड़ के नीचे बैठकर, फिर उसके बाद मिट्टी भर के बाल्टी ले जाऊंगी। कौन सा कोई इतनी जल्दी है, अभी तो शाम होने में बहुत वक्त बाकी है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। टूनी चिड़िया बाल्टी में मिट्टी डालना भूल जाती है। अचानक से टूनी चिड़िया को किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत मुसीबत में है। वहाँ दूसरी तरफ एक चिड़िया के ऊपर पत्थर गिर गया होता है। टूनी चिड़िया आवाजें सुनकर उसके पास आती है और देखती है ये चिड़िया मुसीबत में है, तो उसका पत्थर हटाने लगती है। टूनी चिड़िया पत्थर हटाने में कामयाब हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ एक रोशनी होती है और वो चिड़िया एक खूबसूरत परी के अंदर बदल जाती है। अरे रे, डरो नहीं, मैं परी हूँ, भला मुझसे क्यों घबरा रही हो? अरे खूबसूरत चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। दरअसल मैं इस पत्थर के नीचे फंस गई थी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब इसके बदले में मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी करूँगी। तो जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या हैं 2 ख्वाहिशें, और उन्हें पूरी कर लो। 2 ख्वाहिशों में से सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मुझे भूख लगी है, तो मेरे लिए कुछ अच्छे पकवान ला दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, बस इतनी सी ख्वाहिश? अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, ये लो। परी के ये कहते ही अचानक से सामने बहुत मजेदार पकवान आ जाते हैं और टूनी चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, कितने मजे के खाने हैं, और हाँ,
दूसरी ख्वाहिश मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी, अभी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। तुम्हारा जब भी दिल करे मुझे बस याद करना, मैं फौरन वहाँ पर आ जाऊंगी और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दूंगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और मुझे याद करके वापस बुला लेना, मैं तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और टूनी चिड़िया को मज़े मज़े के पकवान दे जाती है। टूनी चिड़िया उनको तभी खाना शुरू कर देती है और ख़त्म करती है। वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का इंतज़ार टोनी कबूतर कर रहा होता है। टूनी चिड़िया टोनी कबूतर के पास भागते हुए आती है। टोनी कबूतर टूनी चिड़िया को बिना बाल्टी के देखकर गुस्से में आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहने लगता है, तुम बिना बाल्टी के ही वापस आ गई, तुम्हें एक काम दिया था वो तक तुमसे नहीं होता। सही कहती है माँ, तुम किसी काम की नहीं हो, मैंने ही गलती की है। टूनी चिड़िया ये सारी कहानी फौरन से टोनी कबूतर को सुनाने लगती है। टोनी कबूतर ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों फौरन से घर की तरफ निकलते हैं। टूनी चिड़िया घर आके अपनी सास को सारी कहानी सुनाती है कि कैसे उसे परी मिली और उसने पकवान दिए और एक और ख्वाहिश रहती है जो कि अभी टूनी चिड़िया ने मांगनी है। ऐसे ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे टोनी चिड़िया, तुमने अपनी दूसरी ख्वाहिश के बारे में क्या सोचा? भला क्या मांग रही हो तुम परी से? थोड़ा सोच समझ के मांगना, एक आखिरी ही ख्वाहिश बची है, बस ऐसी ख्वाहिश मांगना जिसमें हम सबका भला हो। माँ, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, अभी मुझे इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई ख्वाहिश मांगूंगी। फिर एक रोज जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दोस्त के पास आती है। टूनी चिड़िया की दोस्त उसे अपने सारे हालात बताती है कि वो बहुत ही गरीब है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। टूनी चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत अफसरदा हो जाती है और अपनी दोस्त के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। घर आने के बाद आखिरकार टूनी चिड़िया अपनी आखिरी ख्वाहिश भी सोच लेती है और तभी परी को याद करती है। परी को याद करते ही अचानक वहाँ पर परी आ जाती है। देख लो, तुमने मुझे याद किया और मैं यहाँ हाजिर हो गई। अब जल्दी से अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ क्या है, ताकि मैं उसे भी जल्दी से पूरा कर डालूं। काफी दिन सोचने के बाद मैंने यही फैसला किया है कि मेरी दूसरी ख्वाहिश ये होगी कि तुम हीरों की बारिश कर दो मेरे घर के ऊपर। ठीक है खूबसूरत चिड़िया, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश भी जरूर पूरी हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया की दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और उसके घर के ऊपर हीरों की बरसात होने लगती है। माँ, मेरे साथ चलें, जल्दी बाहर चलें, बाहर हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश हो रही है, जल्दी चलें मेरे साथ, मुझे आपको दिखाना है। टूनी चिड़िया की सास को उसकी बातों पे जरा भी यकीन नहीं आता। वो समझती है कि टूनी चिड़िया उसको बेवकूफ बना रही है, मगर फिर एक सेकंड के लिए वो टूनी चिड़िया पर यकीन करती है और घर से बाहर जाकर देखती है। घर के बाहर हीरे देखकर टूनी चिड़िया की सास बहुत हैरान हो जाती है। अरे वाह, इतने हीरे! हीरों की बारिश हो रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारे घर के बाहर इतने हीरे, अब हम इन इतने ज्यादा हीरों को क्या करेंगे? तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम इतने हीरों के साथ क्या करें। हमारे पास बहुत ज्यादा हीरे हैं और मैंने यही सोचा है कि इसमें से हम कुछ हीरे जंगल वाले परिंदों को दे देंगे, जो परिंदे बहुत ज्यादा गरीब हैं, ताकि वो भी अमीर हो जाएं और अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही नेक दिल और नेक ख्याल निकली। तुम कितना अच्छा सोचती हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हमारे जंगल में जितने भी गरीब और बेचारे परिंदे हैं, हम ये सब हीरे उनमें बांट दें। वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे ख्यालात तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो तुम्हें ऐਵੇਂ ही इतना गलत समझती रही, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरा बेटा भी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ऊपर वाला हर एक को ऐसे ही सोच रखने वाली बीवी दे। फिर इसी तरह टूनी चिड़िया अपनी अच्छाई का सबूत देते हुए जंगल के सभी परिंदे और जानवरों में हीरे बांट देती है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें। और ऐसे ही कुछ हीरे टूनी चिड़िया अपने परिवार के लिए भी रख लेती है, ताकि वो आने वाले वक्त में अच्छी जिंदगी गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं टूनी चिड़िया, आपकी दोस्त।
ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام ٹونی چڑیا تھا۔ ٹونی چڑیا بہت اچھی اور نیک دل چڑیا تھی جو اپنے جنگل کے باقی سبھی پرندوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اور ہاں، ٹونی چڑیا بہت مشہور چڑیا تھی کیونکہ ٹونی چڑیا کھیتی کرتی تھی اور اس کھیتی سے ٹونی چڑیا بہت سارے پیسے کماتی تھی اور وہ پیسے ٹونی چڑیا غریبوں میں بھی بانٹتی تھی۔ سبھی لوگ ٹونی چڑیا کے اچھے کردار سے واقف تھے اور ٹونی چڑیا کو اس جنگل میں پسند کرتے تھے۔ ارے واہ، اس دفعہ کتنے اچھے کیلے اگے ہیں۔ میں تو ایویں پریشان ہو رہی تھی کہ میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ اس دفعہ بہت اچھے کیلے اگے ہیں، ان کو میں جب شہر میں جا کر اچھے داموں پر بیچوں گی، لگتا ہے ان کیلوں سے مجھے اچھا خاصا منافع ہوگا۔ اور ہاں، میں نے اپنی دوست کی بھی تو مدد کرنی تھی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے۔ چلو اچھی بات ہے، اب اس کو پیسے بھی دے دوں گی اور پھر بھی میرے پاس کافی رقم بچ جائے گی، اوپر والے کا شکر ہے۔ دوسری طرف اس جنگل میں ایک کوا رہنے آیا تھا جس کا نام کالو کوا تھا۔ یہ کالو کوا پہاڑوں میں سے آیا تھا اور اب اس جنگل میں رہنے لگ گیا تھا۔ تبھی وہ کالو کوا گھر سے باہر نکلتا ہے اور جنگل کی معلومات لینے کے لیے جنگل کے پرندوں کے پاس جاتا ہے اور وہ آ کر وہاں چیل سے مل لیتا ہے۔ ارے دیکھو کالو کوے، مجھے جو اس جنگل کے بارے میں پتا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے، لیکن ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اتنی معلومات لے کے آخر کرنا کیا ہے؟ ارے کچھ نہیں، میں نے بھلا کیا کرنا، وہ تو میں اس جنگل میں نیا آیا تھا اور مجھے تم مل کے سوچا تم سے اس جنگل کے بارے میں پوچھ لوں، تو میں سمجھ گیا ہوں اس جنگل میں سب سے زیادہ مشہور ٹونی چڑیا ہے جو کہ ایک امیر چڑیا ہے۔ شکریہ میرے دوست، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اور سناؤ کیا حال چال ہے، تم کہاں پر رہتے ہو اس جنگل میں؟ وہاں دوسری طرف دن رات محنت کر کے ٹونی چڑیا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ٹونی چڑیا سخت بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری طبیعت تو بہت خراب ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سب میری ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی اس دفعہ کام میں بہت دھیان دیا اور اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ اب بھلا کیا کروں میں؟ مجھے تو جا کر کیلوں کو شہر میں بیچنا تھا اور اپنے دوست کو ادھار پیسے دینے تھے۔ وہاں دوسری طرف کالو کوا آتے ہی ٹونی چڑیا کے خلاف سازش کرنے کی سوچنے لگتا ہے کہ کیسے وہ ٹونی چڑیا کی دولت کو اس سے چھین سکتا ہے۔ کالو کوا فوراً سے ٹونی چڑیا کے فارم پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں پر کوئی نہیں۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہی ہو گیا، اتنی امیر چڑیا اور اپنے فارم پر کوئی بھی گارڈ نہیں رکھا پھر فارم کی رکھوالی کرے۔ ابھی ایسے کرتا ہوں، اس کے سارے کیلے اٹھا لیتا ہوں اور جا کر سستے دام میں بیچ دیتا ہوں۔ کالو کوا وہاں سے سارے کیلے لے جاتا ہے۔ کیلے لے لو، کیلے سستے دام میں کیلے لے لو، آج تک تم لوگوں نے اتنے سستے کیلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ کیونکہ کالو کوا سستے کیلے بیچ رہا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے کالو کوے کی دکان پہ رش لگنے لگتا ہے اور کالو کوے سے لوگ سارے ہی کیلے خرید لیتے ہیں اور کالو کوے کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر کالو کوا بہت خوش اور حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلدی اتنی کمائی کر لی۔ آخر کار ٹونی چڑیا کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے فارم پر آ کر دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، میرے سارے کیلوں کے درخت کہاں گئے جن کی میں نے کھیتی کی تھی اور جن کو میں نے بیچنا تھا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اوپر والے؟ اب میں کیا کروں گی؟ اپنی دوست کو ادھار پیسے کیسے دوں گی اور باقی غریبوں کی مدد کیسے کروں گی؟ ٹونی چڑیا اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور رستے میں دیکھتی ہے کہ ایک کوا بہت سارے کیلوں کی ٹوکریاں رکھ کر بیچ رہا ہے اور ٹونی چڑیا اپنے کیلوں کو پہچان لیتی ہے کہ یہ اسی کے کیلے تھے۔ کالو کوے نے تو خوب کمائی کر لی تھی اور اب کالو کوا نئی سکیم سوچ رہا تھا، تبھی اسے خیال آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس جنگل میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو میں پکڑا جاؤں اور میرے سے سارے پیسے لے لیے جائیں۔ اسی لیے ایسا کرتا ہوں، میں سارے پیسے لے کر آج ہی بھاگ جاتا ہوں۔ کالو کوا سارے پیسے لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی رستے میں کالو کوے کو 2 ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور کالو کوے کا سارا پیسہ لے لیتے ہیں، کیونکہ آخر کار یہ پیسہ کون سا حلال کا تھا۔ کالو کوے نے یہ پیسہ چوری کر کے ہی کمایا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور وہاں دوسری طرف بیچاری ٹونی چڑیا محنت کر کے اب جامن کی کھیتی کرتی ہے اور پھر جامن بیچنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ پھر سے غریبوں کی مدد کر سکے اور اپنی دوست کو بھی ادھار دے سکے۔ اور ایسے ہی ٹونی چڑیا بہت سارے پیسے کما لیتی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹونی چڑیا تھی تو آخر نیک دل ہی۔ اور پھر ٹونی چڑیا اپنی دوست کو ادھار پیسے دیتی ہے اور سب غریبوں کی مدد کرتی ہے۔
वहाँ दूसरी तरफ कालू कौवा नए जंगल में चला जाता है। ना उसके पास रहने को घर होता है और ना ही कोई पैसा। सही कहते हैं, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी। एक जंगल की बात है जिसका नाम टूनपुर था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी और टूनी चिड़िया का शौहर भी मर चुका था और ना ही उसकी कोई बेटी या बेटा था। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती करके अपना घर चलाती थी और अपनी जिंदगी गुजारती थी। वो गन्ने को मिल में बेचती थी और मिल के मालिक से कुछ पैसे ले लेती थी और मिल का मालिक उस गन्ने की चीनी बना देता था। टूनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती थी और कमाती थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं, पहले भी तो इतना ही काम करती हूँ, आज मैं पता नहीं क्यों थक गई हूँ।